Welcome all of you. आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सीपी फंक्शनल मूवमेंट एंड बैलेंस कोऑर्डिनेशन। So we welcome you all. We are getting information that many cities the internets have closed, shut down due to the student agitation. So anyway, we'll record the video and we'll upload it at YouTube. So later on, other trainees may see these videos. So we have to still wait because some more trainers yet to join. Good evening, sir. चलिए सभी का स्वागत करते हैं। लेट अस स्टार्ट स्लाइड एंड हम बीच में फिर आपको थोड़ा सा वी विल शो यू द वेबसाइट ऑफ टू वेबसाइट। एक तो जो है आपके ऑल द बिहार डिजेबल स्पोर्ट्स एकेडमी। सर आप शेयर कर सकते हैं सर, मैंने आपको वो पोस्ट बनाया है। सो you might have seen this the website. सभी कोई देख पा रहे हैं? Yes. Yeah, this is the website. Who have seen this website? अगर आपने नहीं देखा है तो www.isfcp Indian Sports Federation of Cerebral Palsy. आज today's topic is based on this website only. So you will see each and everything. The lots of resources are attached. So like go through this that about the Indian Sports Federation of Cerebral Palsy. You will go the sports training. See, the many photos are there for the sports training. So you can go through. Then sports UFC, athletics, shot put. Then we'll see various sports are action pictures are there. So in the athletics, football. Then we have the swimming, para badminton, Boccia, para taekwondo, table tennis, wheelchair basketball, cricket, cycling, archery, recreational fitness. These are the sports you will see. And then the classification, already we are going to describe you the classification like CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, and CP8. And in the Paralympic, this comes 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38. So we'll see the classification. We'll see the championship. See the action pictures are for various championship. National champions, so many national champions we have. And then we were the pioneer to start cerebral palsy sports in India. So we have started. हम लोग के पहले कोई नहीं था. There are the result section. You can see the various results are there. CP football, 5A football, cycling, swimming, roller skating, badminton, then athletics championship. So, yes.
So you will see the results are there. And the under coaches registration, like you see, and the coach who has took the coaches training program, their iCard has been uploaded. Then the volunteer section, many volunteers are there. So volunteers and the sports therapy. So it's there. Then affiliation unit, you will find all over India. Their affiliated units are like you click, you will see the Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka. हाँ तुलसी, हाँ तुलसी। अच्छा तभी तो हम क्लास ले रहे हैं 9-10 बजे के बाद। ठीक नहीं, देखते हैं। तो हाँ तुलसी, 187-765। ठीक है, इसमें चालू था क्या ये वाला इसमें? अच्छा ठीक है, चलो ठीक। ओके ओके, ये लॉग आउट इसमें से हो गया है, इसी में चालू था। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक। Then Madhya Pradesh, so you will see, you will find all the affiliated units. Then we have the affiliated unit as well. We have the affiliated union territory also, it is there. Then family supports programs, already it is there. How to family have to support, what are family have to do if any family wants to inquire, register themselves, and so they can do. Then the gallery is there, newspaper clips, you will see, fine gallery newspaper. You will see there are so many newspapers in the various states. You will see colors of news from various states: Gujarati, Odisha, Tamil Nadu, all the Tamil, Telugu, Malayalam, or you will find all the various in the gallery. And then the photographs you will see. See, photographs is there. So you will find skating, all the pictures, cycling. So beautiful pictures are there. And then we have the video section, download. There are download section, resources are there. This disability sports books, that's books has been written by me. You will find the books, beautiful books, resources are there. It is in Hindi, all free of cost. You will find other if you buy in the market, the cost is 1,000, but you can download. It is in Hindi. So almost 308 pages books are there. See, the books are beautiful. So all this is beautiful. Then we have to okay. Back. Yeah, so Disability Sports Book, National Sports Government Act, Protection of Human Rights. So many resources are there. Then important letters you will find. There are letters. You will find various letters. Policy Act rules, it is there. Guidelines of state funds, personal with disability, National Sports Governments Acts. Then the books and manuals already have shown you. Important notice, like you will find out where is the 22nd annual AGM is held. You will see, find rules and classification. This is the official technical handbook, CP football you will find.
So why I am telling you, because within the 1 hour it's not possible to describe each and everything. So you can find the resources like cycling, how what are the events eligible for, like this the ASD, and then cerebral palsy. So division 1, division 2, see general cycling. You find all the other sports also. Like yeah. आगे other line. Yes. So again we have to, हमारी लाइन काफी देर से कटा हुआ था. And then CP football, you will find the football's rules, all the technical things you will find is there in the several CP football, 5-a-side and 7-side, when it was started, what are the rules, so what are the guidelines, no? What are the team combinations, you will find each and every. It's in bilingual, so both in English and Hindi. Lots of resources are there. Then badminton also. And then recently we have conducted master trainer program. So this is also, it will be helpful. It's a 268 pages. So somebody can download and share in the group. So this is very useful. So lots of information are there. Okay, then we have to download this. We have to athlete registration. If any CP athlete wants to associate with Indian Sports Federation of Cerebral Palsy, somebody is doing like this. Red one, this is coming. But कोई कर रहे हैं तो please stop. So athlete can register themselves, like which events. So the form is there. Donation, we also accept donation because year round we are conducting the sports training. So contact us, and this is an official registration also. You will find so many officials. See, those who have helping us. So this you will find their officials. The ID card is there, so they are eligible. My referee, officials. So you will find different role. See, they have done well when we have conducted. So you will find each and everything. Official registration is there. So we have to stop this one and we'll start our presentation. So 59 people has, even we are facing the internet problem still, I think 60 people have joined. Let us start my presentation. Otherwise I have to, Rahul ji, could you load my presentation or I have to load? Okay, then I have to go my presentation. Okay. So we little delay, but we welcome you. The today program is Train the Trainer program, and on the 10th day, we will discuss type of CP, functional movement, balance, coordination. You might be knowing me, and this is Dr. Shivaji Kumar, and my experience last 31 years we are working for the person with disability. I have served as a state commissioner for person with disability, as well as the nodal officer of National Trust Government of India and Bihar government, many government, as well as many NGOs. And we established in the Bihar, found Bihar and Jharkhand and Chhattisgarh, the Paralympic movement, then the Special Olympics, then autism sports all over India. First time we have started our CPA sports, autism sports, and wheelchair rugby. So I was the pioneer and founder. So let us go next slide. This is the
today topic is Model 10, the cerebral palsy sports, type of cerebral palsy, functional movement, balance, and this one. So today learning outcome will be, objective will be what? By the end of today's session, you will be able to understand what is a cerebral palsy, and then identify different types of CP, understand functional movements, improve balance and coordination, then the apply safe coaching practices, and plan inclusive sports activities, promote athlete इंडिपेंडेंस हो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेरेब्रल पाल्सी क्या है, विभिन्न प्रकार क्या है, कार्यात्मक गतिशीलता को हम समझ सकेंगे, संतुलन और समन्वय क्या है, सुरक्षित कोचिंग क्या है, इसको भी जान पाएंगे, और समावेशी खेल गतिविधि का भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि टुडे सेशन फोकस ऑन द फंक्शनल एबिलिटी रेदर देन मेडिकल डायग्नोसिस। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो अबाउट ISFCP, Indian Sports Federation. Already I have shown you the website. The Indian Sports Federation of Cerebral Palsy is the national sports federation dedicated to promoting a sports opportunity for the person with cerebral palsy and related neurological condition. So what we do, we promote athlete development, coaches education, national championship, functional classification, inclusive sports, community sports, and technical official education. As we are given, we have shown you our technical officials. Those were got the training and they were conducting the sports. So, what is the vision? Let us start. क्या है vision? Sports for every individual with cerebral palsy. Cerebral palsy के सभी प्रत्येक व्यक्ति तक खेल को पहुंचाना, दिस इज द विजन। एंड व्हाट इज द मिशन? मिशन इज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी इन द स्पोर्ट्स, हेल्थ, इंक्लूजन, लीडरशिप एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर एवरी एथलीट विद सेरेब्रल पाल्सी। तो क्या करना है? खेल, स्वास्थ्य, नेतृत्व, समावेशन तथा शारीरिक गतिविधि के माध्यम से प्रत्येक खिलाड़ी का हमको विकास करना है। सो व्हाट इज ए सेरेब्रल पाल्सी? आप जानते हैं सेरेब्रल पाल्सी is a permanent neurological condition affecting movement, posture, muscle coordination। ये हमारा जो है सेरेब्रल पाल्सी क्या है? एक अस्थायी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिससे शरीर में क्या है, गति, संतुलन, मांसपेशी के नियंत्रण एवं शरीर के मुद्राओं को प्रभावित करती है। सॉरी सर, एक रिक्वेस्ट है, प्रेजेंटेशन मोड पे कर देंगे क्या? हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको। नहीं आ रहा है, क्या करना है इसको? प्रेजेंटेशन मोड में सर, ये सबसे नीचे जो है ना, एक 4 हेडर्स हैं, वहां पे क्लिक कर दीजिए ना, चौथे नंबर पे राइट साइड में, और नीचे और नीचे, हाँ यहाँ ये पे, और राइट साइड में चौथा नंबर सर, हाँ क्लिक करिए। अब आ गया? चलिए ठीक हाँ है। सर, अभी ठीक है सर, बेटर, थैंक यू। सो इज इट विजिबल? सभी को विजिबल है? यस सर, यस सर, यस सर। Okay, thank you. Visible. So see, what is a cerebral palsy? Cerebral palsy is a permanent neurological condition affecting what? Movement, posture, and muscle coordination. It results from damage to the developing brain before, during, and shortly after the birth. यानी जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के तुरंत बाद। यानी तुरंत बाद में नहीं होता है, आफ्टर इमीडिएटली, जो जन्म के समय के बाद, आप बोलिएगा दूसरे तीसरे दिन के बाद नहीं, बिफोर प्रीमेच्योर कंडीशन, ड्यूरिंग द बर्थ। उसका हमारा जो कॉर्पस कोलोजम है, मोटर कॉर्टेक्स है, अगर आप पढ़े होंगे न्यूरोलॉजिकल, तो वो इफेक्ट करता है। सो व्हाट सीपी इफेक्ट्स? मूवमेंट, मसल टोन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर और फंक्शनल एक्टिविटीज। तो हमारा शरीर को क्या प्रभावित करता है? गति को, कहीं जाने आने, हमको पकड़ना है, बॉल पकड़ना है, दौड़ना है, तो मांसपेशी का नियंत्रण, और बैलेंस, चलना है, उठाना है, एक पैर पर खड़ा होना है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, और विभिन्न मुद्राओं में खड़ा होना, जैसे मैं खड़ा होकर आपको दे रहा हूं, दैनिक कार्य करना, तो जिससे प्रॉब्लम से। तो काउज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी क्या है? अभी बता रहे थे, काउज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी
डैमेज ऑफ डेवलपिंग ब्रेन. ब्रेन इंजुरी में अकर बिफोर द बर्थ, प्रीनेटल, ड्यूरिंग द बर्थ. प्रीनेटल क्या हो सकता है? जब प्लेसेंटा में जायगोट होता है, आप लोग पढ़े होंगे, हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, उस समय हमारा जो है ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उसमें किसी न कारण बस जो है प्रॉब्लम होता है. दूसरा ड्यूरिंग द बर्थ, या तो जेनेटिक प्रॉब्लम है उसके कारण प्रॉब्लम है. ड्यूरिंग द बर्थ के समय, जन्म के समय, वो ज्यादातर बच्चे सर के बदल होता है, लेकिन कभी कभी पैर के बदल होता है. उसमें फोर्सेप डिलीवरी होता है, इसमें चिमटा से सर को खींचा जाता है. उसके कारण जो है बच्चे रोता नहीं है ना. आफ्टर बर्थ क्या, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिला, उससे हमारा ब्रेन लीजन हो गया, हमारा मोटर कोर्ट लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जिससे जुड़ा हुआ है उसमें प्रॉब्लम हो गया. सो द कॉमन काउजेज क्या है? प्री मेच्योर ब्रेन, 7 महीने से पहले, सॉरी 9 महीने से पहले बच्चे का जन्म हो गया. लो बर्थ वेट, 2.5 की जो बर्थ वेट होना है उससे पहले हो गया. और जन्म लिया तो ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्थ. ब्रेन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, सेवरल नियोनेटल जॉन्डिस भी हो जाता है सीवियर. तो सीवियर जॉन्डिस होने के कारण ही प्रॉब्लम होता है. हेड इंजुरी और इन द अर्ली चाइल्डहुड, जब उससे भी जो है सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है. स्ट्रोक अफेक्टिंग द डेवलपिंग ब्रेन. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स? सेरेब्रल पाल्सी इज नॉट ए contagious and it is not a progressive disease. तो क्या एक बार जो हो गया, बाहर में नहीं कि जितना हो गया उससे ज्यादा बढ़ने वाला है. सो इट्स नॉट ए प्रोग्रेसिव डिजीज, हमको याद रखना है. और कंटेनिजियस नहीं है ये, ठीक है. तो ये है कि संक्रामक नहीं है, तो फैलता नहीं है और बढ़ने वाला नहीं है. तो ये जान गए. टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी हम जान, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. स्पास्टिस, जिसमें बहुत करापन होता है, एकदम हाथ पैर कैंची के आकार का हो गया, बहुत कड़ा हो जाता है, उसको उठना बैठना पकड़ने में पूरा शरीर का जो है कड़ा हो जाता है. उसके बाद डिस्काइनेटिक. डिस्काइनेटिक जो है सेरेब्रल पाल्सी होता है जिसमें उसको बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो जाता है. फिर अटैक्सिक होता है, मान ली पकड़ना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, निगलना चाह रहा है, उससे हो नहीं पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ब्रेन सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा. और मिक्स सीपी क्या होता है, दोनों मिला के डिस्काइनेटिक और जो अटैक्सिक जो है दोनों मिला के जो होता है उसको मिक्स्ड बोला जाता है. तो ईच एथलीट हैज डिफरेंट फंक्शनल एबिलिटीज. क्या हो सकता है? स्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, नॉट ओनली मेडिकल. खाली हम डायग्नोसिस किए पैराप्लेजिक है, हेमिप्लेजिक है, डायप्लेजिक है, क्वाड्रप्लेजिक है, उसके आधार पर नहीं. व्हाट इज द फंक्शन, उस कितना काम कर पाता है. और सेरेब्रल पाल्सी स्पास्टिक. तो पहला क्या है टाइप्स ऑफ स्पास्टिक? स्पास्टिक माने कड़ा. स्पास्टिक CP accounts for nearly 70 to 80% of all cerebral palsy. मतलब ज्यादातर जो सेरेब्रल पाल्सी है वो स्पास्टिक होते हैं, 70 से 80% मामला. इसका व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? उसका क्या है? इसका है मांसपेशी में कठोरता, इंक्रीज मसल टोन. मांसपेशी को कुछ है बहुत कड़ा हो जाता है. इसके बाद क्या है? अधिक मांसपेशीय तनाव, मसल्स स्टिफनेस, पूरा दबाव होता है. पकड़ना है जितना अमाउंट में हमको, मान लीजिए ये रिमोट पकड़ रहे हैं, तो रिमोट का क्या है, छोटा सा है, लेकिन हमको अगर कोई ज्यादा वेट वाला पकड़ना, ज्यादा वेट लगाना, तो हमको ये ब्रेन नहीं बता पाता कि हल्का है कि भारी है. वो सभी के लिए जो है एक जैसा जो है स्टिफनेस लाता है, इसी कारण स्टिफनेस हो जाता है. उसको ब्रेन से उतना ही अमाउंट में जो है उसको एनर्जी को रिलीज करता है, न्यूरॉन्स को देता है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल जो है डिसऑर्डर है. और इसका क्या है? लिमिटेड ज्वाइंट मूवमेंट. ज्वाइंट मूवमेंट में जो है बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है. इसका एबडक्शन एडक्शन जो होता है, उसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो सब जो है ज्यादा नहीं हो पाता. डिफिकल्ट इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत होता है, सब जानते हैं. पुअर बैलेंसिंग, पुअर होता है. रेड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, उसका जो है लचीलापन कम होता है. तो हमारा कोचिंग का क्या फोकस होना चाहिए? हम लोग स्ट्रेचिंग कराएं ज्यादा, फंक्शनल स्ट्रेंथनिंग जो है हम लोग ज्यादा करवाएं,
बैलेंस एक्सरसाइज को ज्यादा करवाएं, वॉकिंग ड्रिल्स और प्रॉपर पोस्चर, ये सब हम करा सकते हैं। तो दिस काइनेटिक सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, इसमें एथलीट्स एक्सपीरियंस इनवॉलेंट्री मूवमेंट, है ना, एथेटोआइड। डिस्काइनेटिक को क्या बोलते हैं, एथेटोआइड भी। अटैक्सिक अलग हो गया, एथेटोआइड यानी इस प्रकार के शरीर में अनियंत्रित गति दिखाई देती है। खाना है, निगलना है, पकड़ना है, चलना है, लगता है गिर जाएगा, लगता है शराब पिए हुए है, इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन वो बैलेंस कर लेता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट, उसका जो अनियंत्रित गतिविधि होता है। डिफिकल्ट मेंटेनिंग द पोस्चर, उसको शरीर की पोस्चर को मेंटेन करने में, कहीं निकलना है, जाना है, टकरा जाता है। और फ्लक्चुएटिंग मसल टोन क्या है, एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि हम जब किसी को पकड़ते हैं तो एक जैसा रहता है, लेकिन उसका मसल टोन बदलते रहता है, क्योंकि ब्रेन से जो है इसका जो है अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन जो है उनको दिया जाता रहता है। इसके कारण जो है उसको प्रॉब्लम्स होती रहती है। और इसके अलावा जो है, हाँ, प्रॉब्लम विथ स्पीच, बोलने में आप देखते होंगे उसको तोड़ तोड़ कर, रुक रुक कर, आधा बोलता है, आधा लगता है कि नहीं बोल पा रहा है, उसको बहुत दिक्कत होता है, लगता है उसको बहुत दिक्कत से बोल पा रहा है। और डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग द हैंड्स, हाथ को कंट्रोल करने में, ग्लास पकड़ना है, चम्मच पकड़ना है, माउस पकड़ना है, तो उसको कितना, कहाँ तक ले जाना है, कितना अमाउंट तक उसको प्रेशर देना है, कहाँ रुकना है, ये सब कंट्रोलिंग कम रहता है। तो हमारा स्पोर्ट्स कोचिंग में क्या करना है, स्लो डेमोन्स्ट्रेशन, धीरे धीरे प्रदर्शन करें। स्टेबल सिटिंग और स्टैंडिंग सपोर्ट, उसका उचित सहारा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टाइम, उसको थोड़ा सा अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। और रिपीटेशन चाहिए, बार बार अभ्यास करवाएं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, हमने बार बार पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को दिया। एथेटोआइड सेरेब्रल पॉल्सी को हम जानेंगे। अब एटैक्सिक, एटैक्सिक क्या है, इसमें क्या है, संतुलन और समन्वय में सबसे बड़ी, इसको चलने फिरने में संतुलन में प्रॉब्लम आता है। पोन्स और मेडुला, आप लोग जानते होइएगा, पढ़े होइएगा बायोलॉजी में, जो हमारा शरीर के इनवॉलेंट्री मसल्स, जैसे सांस लेना, हमारा अपने आप में मोटर, फाइन मोटर एक्टिविटीज, कोई सामने आंख में आता है रोशनी तो अपने आप बंद हो जाता है, ये सब चीज जितने भी हमारे संतुलन और समन्वय जो हमारा है, टैक्सिक सीपी मेनली अफेक्ट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इसका विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, अनस्टेडी वॉकिंग, अस्थिर चाल है, पुअर बैलेंस, उसका संतुलन में कमी होता है, ट्रीमर्स, कंपन होता है ना, और डिफिकल्टी विद द प्रिसाइज मूवमेंट, सूक्ष्म गतिविधि, फाइन मोटर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होता है। एंड वाइड बेस्ड गेट, गेट मतलब पैरों को फैला कर चलने में, हमारा गेट ट्रेनिंग क्या होता है, चलने का ट्रेनिंग होता है, दोनों पैर चिपक जाता है, दोनों पैर अपने पैर में पैर टकरा जाता है, क्योंकि उसका कैची नुमा होता है, इसको बोलते हैं वाइड गेट, गेट ट्रेनिंग, चलने का ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग, व्हाट शुड बी फोकस ऑन ट्रेनिंग, बैलेंस ड्रिल, उसका व्यवस्था कराएं, कोर स्टेबिलिटी उसकी व्यवस्था कराएं, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज करवाएं हम लोग, कंट्रोल मूवमेंट प्रैक्टिस करवाएं, और फंक्शनल वॉकिंग एक्टिविटी जो हम लोग चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का, योगा। आवाज आ रहा है राहुल जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। मिक्स्ड सेरेब्रल पॉल्सी, इसमें देखिए दोनों मिक्स करके होता है। मिक्स्ड सेरेब्रल पॉल्सी अकर्स व्हेन एन एथलीट हैज फीचर्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सीपी, है ना। इसमें क्या होता है, कॉमनली स्पास्टिसिटी एंड, हमने बोला था डिस्काइनेटिक्स, डिस्काइनेक्सिया या उसको एथोटाइड, ठीक है, स्पास्टिसिटी विथ अटैक्सिक, है ना, ये दोनों मिलकर हो सकता है। तो इसका विशेषता क्या है, कॉम्बिनेशन, ये देखो साउंड इज क्या, पता कमिंग, नहीं क्या कर रहे थे तुम आधे घंटे से। प्लीज 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 म्यूट योरसेल्फ। तो निकल जाना था, क्या हो रहा था, मैंने बोल दिया था। मैंने क्या बोला, मैं इवेंट डेविड के घर जा रहा हूँ आईवन, आईवन, मुकेश कुमार यादव जी,
आपकी आवाज आ रही है? I1 from क्या करे ऑर्डर? Maharashtra. मटन ऑर्डर करेंगे I1, क्यों? आज कल तो शनिवार है ना। अरे कल I1, ये है ना, I1 आपका जी, खा सकते हैं। please mute yourself. म्यूट करना एकादशी है। हो गया तो आपका उपास भी रहेगा? रहेगा ना। फिर आज ही करेगा बड़ा। आओ अभी बंद कर दो अभी। सर इनको रिमूव करवा दीजिए ना। रिमूव रिमूव करवाइए उसको जी। इसे एक बार कर लिख लो। Am I audible? Sir, please. Yes. Am I audible? Yeah. Who is speaking? Now, I have muted them. Let us start. Okay. So, what हम लोग क्या बात कर रहे थे? The characteristics of mixed cerebral palsy. So, what मांसपेशी में कठोरता तथा अनियंत्रित गति हो जाता है, संतुलन में कठिनाई, समन्वय में कमी हो जाता है, वेरिएबल मूवमेंट्स पैटर्न्स हो जाते हैं. Then the individual function ability differ greatly. प्रत्येक खिलाड़ी की कार्यात्मक क्षमता अलग अलग होती है. So what the coaching हमारा coaching focus will be the individualized training plan. So we we are from a special education side. So we know the IEP, individual educational program. Likewise, we can make the individualized training, sports training program. Then the functional assessment before the activity, we have to find out all the different area, like if the hemiplegia is there, even the diplegia, quadriplegia, paraplegia. So we have to functional assessment, motor activities. So we can do adapt drill according to ability. क्षमता के अनुसार गतिविधि में परिवर्तन कर सकते हैं. Then encourage participation and confidence that we can do. Another functional moments क्या कर सकते हैं? We have to see कार्यात्मक गतिशीलता. Functional moment refer to the ability to perform everyday and sports related activities efficiently and safely. है ना? तो क्या करता है? दैनिक जीवन में खेल गतिविधि को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से हम लोगों को ढंग से करना है. So what are the key components? Mobility, गतिशीलता, स्टेबिलिटी, स्थिरता, बैलेंस, संतुलन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय और पोस्चरल कंट्रोल. हमारे शरीर की मुद्राएं पे ये बहुत जरूरी है. बॉडी अवेयरनेस. हमारे जब बच्चे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कराते हैं, फुटबॉल लाइक सीपी फुटबॉल, सो इट्स वेरी वेरी नीडेड द बॉडी अवेयरनेस. तो हमको सेवरल फुटबॉल में किन को खिलवाना बाद में चर्चा करेंगे. ऑलरेडी we have shown you the website. You go through the website, you find all the different sports, key sports there, the rules, regulation, classification, each and everything, and then how to the rules and what are the official rules, what are the coaches, what we have to do perform, सारा चीज, and parents what we have to do, each and everything it is given, and you go through the website, you will download. It is in the bilingual daily, sorry, Hindi and English, so you can download it. So what we can do is sports example like walking, running, jumping, throwing, catching, kicking, turning, stand up. ये सारा का सारा हम उस बच्चे को हम लोग सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को करा सकते हैं. So functional movement assessment, because cerebral palsy major problem is movement. So what we can do, functional movement assessment, what we can do before the catching, before the coaching, what we have to do, evaluate how the athlete performs. We have to find out how the athletes are performing. So what we have to do, we have to assess their areas, like walking pattern. उसका एक सीधा में चल पाता है, एक लाइन खींच देंगे हम, या कुछ ऊंचाई पर रख देंगे, स्टेप्स सीढ़ी पर चढ़ा कर देखेंगे. So we'll see whether he can walk properly or not. So that is why we have to see चलने की शैली क्या है. स्टैंडिंग बैलेंस, खड़ा होने पर व्हाट इज द संतुलन. वो ज्यादा देर खड़ा हो सकता है, सिंगल लेग खड़ा हो सकता है, डबल लेग खड़ा हो सकता है. तो व्हाट आर द स्टैंडिंग बैलेंस. अनदर इज सिटिंग बैलेंस.
तो उसको बैठने का जो संतुलन है किस तरह का है, वी हैव टू सी ज्वाइंट मोबिलिटी। आप देख सकते हैं एक्सटर्नल एबडक्शन, इंटरनल एबडक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो थोड़ा जान सकते हैं कि उसका क्या मोबिलिटी है ज्वाइंट का। मसल स्ट्रेंथ क्या है ना, उसको ये देखना है मसल वीक है या कड़ा है, रिजिड है, फ्लेक्सी है, फ्लॉपी मसल्स है। सो वी हैव टू सी द मसल्स स्ट्रेंथ। कोऑर्डिनेशन वी हैव टू सी, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं कि नहीं, वेट शिफ्ट कर पाते हैं कि नहीं, नीचे से उठना है तो कितना उठ पाते हैं कि नहीं, बैठना है तो बैठ पाते हैं कि नहीं। तो वी हैव टू सी द that coordination as well as functional reach, है ना। then the transferability, एक जगह से दूसरे जगह में बताया था ना कि खड़ा हो जाना, चलना एक जगह से, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक जगह बैठ जाने के बाद खड़ा होना इज लिटिल डिफिकल्ट। आप वी हैव सीन इन द बाथरूम वी विल स्क्वेट एंड took the bath, and जब we have to stand, then we are facing the problem because there is a slippery, the furs are there. So what we have to do, see the transferability, then the endurance, सहन शक्ति कितना है. So we have to see the endurance also, whether because it's very important, because if you give the training, we have to find out the endurance. छोटा छोटा चीज पर रोने लगेगा और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो while जो अच्छे, we have to tell them, we have to motivate them, and we have to develop the endurance also. And what the observation, what we have to see, we have to see that can the athlete move independently. We have to think, we have to just check out whether can the athlete move independently. Another, does the athlete require support, क्या सहारे की आवश्यकता है. Then another, the question might come in our mind, being as a coach, which moments are difficult, कौन सा गतिविधि कठिन है. What adaptation are needed, उनको क्या जरूरत है, सपोर्ट्स का, क्रैचेस की जरूरत है या व्हील चेयर की जरूरत है या ट्राई साइकिल की जरूरत है. So what जो है even adaptation are, because you know the throwing events we have to use the throwing a standing bar. So we will show you. So what the gross motor function classification, and what is this level 1, what we have to see, walk independently. Level 2, we have to see walk with the minor limitations. And level 3, what comes, walks using the assistive devices. We have the crutches, we have A4, K4, other assistive technology if we are using, so that comes under level 3. Level 4, what is the limited self mobility, uska totally using the wheelchair. And last, like crutches, they use crutches, बैसाखी लेके चलता है. Then last uses the wheelchair for the mobility. ये हम, we have to see whether it comes under level 1, whether it comes level 2, whether it comes level 3, whether it comes level 4, whether it comes level 5. We have to see their levels also. Then the what we have to see, बैलेंस इन स्पोर्ट्स. सो सबसे ज्यादा जरूरी है. बैलेंस नहीं है तो क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स जो है अफेक्टेड हो जाएगा. सो इट्स वेरी नीडेड. बैलेंस इज द एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी सेंटर ऑफ द ग्रेविटी व्हाइल स्टैंडिंग और मूविंग. हम खड़ा होकर आपको लेक्चर ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं. सो वी हैव द बैलेंस. सो टाइप ऑफ बैलेंस क्या है, स्टैटिक बैलेंस, खड़ा हो गए. डायनामिक बैलेंस, चलते हुए जो है अवस्था में जो है नियंत्रण बनाए रखना है विभिन्न गतिशीलता की अवस्था में. सो डायनामिक बैलेंस. देन स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड बैलेंस, किस कौन कौन सा स्पोर्ट्स में बैलेंस रिक्वायरमेंट है. एथलेटिक्स वेरी मच, देन द रोशिया, देन द फुटबॉल, सीपी फुटबॉल, देन द टेबल टेनिस, द स्विमिंग, आर्चरी. These sports we needed the balance. So benefit of balance training, what for what we have to give the training is a better posture, improve the walking, injury prevention, then increase the confidence and better sports performance. तो उसको हमको बहुत अच्छा जो है खेल का प्रदर्शन में we have to improve. So what the trainer activity should they ask participants to practice what? Single leg standing, heel to toe walking. आप लोग कितने लोग एक पैर पर खड़ा हो सकते हैं? How many people? Can you tell me? How long? Anybody? No. So in Vrukshasana, more than one to 1.5 minutes. 1.5. Very good.
We'll Yes, play. while doing yoga. No, you stand on one leg, make the video, and please send us. We'll see. Yeah, It's very tomorrow good. evening I'll send. To Saturday, tomorrow evening is I'll send you the videos Okay, of very good, Vrikshasana. 2 very good. minutes. Yeah, Yes. that's a good coach. This Yeah. activity. So Thank you. Thank you. so well, we also do. I also do. I stand on leg and keep balancing. And when sometimes a line we have to walk on the line. We have to see simple things. So we also my age if you about to 51. So again 51 में भी हम लोग regular we have to see this. So what we do when we have to practice to the athlete also, we have to keep balance. We have to see whether our posture is while standing, while running, we are talking, whether हमारा जो symmetrical है, जो central nervous system से हमारा क्या दूसरे is balanced or not balanced. Even we are sometimes we are wearing the shoes, we are wearing the slippers, वो थोड़ा घिस जाता है. So that also affects when the मिनी सेंटीमीटर्स का छोटा सा अगर अंतर हो जाता है हमारे शूज में, दैट अफेक्ट्स आवर बॉडी, हमारा पोस्चर को. सो वी हैव टू सी वेरी हमारा शरीर का जो पूरे 100% हमारा जो है बैलेंस होना चाहिए तो हमारा होता है. लेकिन बट विल सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी. सो स्टैटिक बैलेंस वी नो, डायनामिक बैलेंस, एंड व्हाट ऑलरेडी वी हैव स्पोकन कि जो फॉर बैलेंसिंग दीज आर द sports we can recommend. And what the benefits? Better posture, improve the walking, injury prevention, increase the confidence, and better sports performance. So what we have to see this then. Another thing, coordination in sports. So what does it mean coordination? That is वह क्षमता है जो शरीर के विभिन्न अंगों के साथ मिलकर सही सुरक्षित और जैसे बैडमिंटन वी आर कोऑर्डिनेटिंग एंड wheelchair basketball, we have seen the rugby, we have seen, and so there is a together coordination is the ability to use different body parts like so together smoothly, accurately, and efficiently during the movements. What happens? Eye-hand coordination. When we खाते हैं हम तो still we see हम लोग खाते हैं तो किसका जूठा नहीं गिरता है आप लोग में से. तो वी हैव टू सी, कभी कभी सट पर गिर जाता है तो दिमाग और चलता है, खाते समय दाल गिर गया, दही गिर गया. और सो वी हैव टू सी फुट आई कोऑर्डिनेशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम चल रहे हैं क्या, कहीं और टकरा रहे हैं क्या. सो वी हैव फुट आई कोऑर्डिनेशन इज देयर और नॉट. देन द बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, हमारा एक जगह से दूसरे जगह दोनों शरीर का समन्वय हो रहा है कि नहीं. रिदम्स एंड टाइमिंग्स, लय के साथ हम लोग कर रहे हैं कि नहीं अपने बॉडी को. एंड मोटर प्लानिंग, हमारा जो मोटर है चलने का फिरने का, रिएक्शन टाइमिंग, ये सब जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गिविंग द ट्रेनिंग फॉर द सेरेब्रल पॉल्सी एथलीट. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेटर मोमेंट्स कंट्रोल, देन द इम्प्रूव द एक्यूरेसी, फास्टर स्किल लर्निंग, बेटर गेम परफॉर्मेंस, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल्स, गिरने का उसको बचाता है. सो coordinating improves with the regular, repetitive, and enjoyable practice is very important. सभी को समझ में आ रहा है एवरीवन? कोई दिक्कत है समझने में? If you have any question, you tell me. No, sir. No, sir. Yes. No, sir. It's very good because हमारे बहुत दिन तक लोग हिंदी में बताया. So today I want to tell you in English. किसी को प्रॉब्लम नहीं है. Bilingual, it already is written also, so it does not have a very simple language. It's a very simple language. So what exercise to improve the coordination? What we can do? Beginning level, ball rolling. Everyone knows ball को ऊपर roll करना है. Have you seen in the special schools and the occupational therapy everywhere? You will see that we have to roll on the ball. Then the balloon tapping, balloon को tap करना है, बैलून को ऐसे से मारना है, छोड़ना है, मारना है, छोड़ना है, मारना है. बैलून टेपिंग जैसे लाइक हम ड्रिबलिंग करते हैं बास्केटबॉल को. सो वी एंड द रग्बी also we dribbling, once dribbles the balloon tapping, then the bean bag throwing
हमारा जो होता है उसको बीन बैग को फेंकना, देन वॉकिंग अराउंड द कोन्स, कोन्स लगा के उसको घूमना, देन द क्लैपिंग्स जो है ताली बजाने वाला खेल, ताली बजाना है, क्लैपिंग करे से कोऑर्डिनेशन होता है। और इन इंटरमीडिएट लेवल व्हाट वी, दैट इज द बिगिनिंग लेवल, व्हाट इंटरमीडिएट लेवल वी कैन डू, catch and throw, we have to catch and throw, we have to catch and throw, we have to catch and throw. Then what we have to do, agility ladder, है ना, we have to do agility ladder कर सकते हैं, slide stepping कर सकते हैं, obstacle जो है कोर्स कर सकते हैं, ड्रिबलिंग ड्रिल्स कर सकते हैं। एडवांस लेवल व्हाट वी कैन डू, रिएक्शन ड्रिल्स, है ना, हम प्रतिक्रिया भास कर सकते हैं, मल्टी डायरेक्शनल रनिंग, हम इधर गए उधर गए, अलग अलग तरह का कर सकते हैं। Also, later on we'll load the, because it's a 1 month program and many sports, many disability sports we are providing you training. So later on we'll see all the video. You will otherwise you find all the video in the website also and the YouTube also. So that the partner passing, so sports aspect coordination. So हम खेल विशिष्ट समन्वय का अभ्यास करा सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू एज ए कोच, वी हैव टू प्रैक्टिस ईच एक्टिविटी फॉर 30 to 60 seconds, अलाउइंग एडिक्वेट रेस्ट बिटवीन द रिपीटेशन, क्योंकि हमारा रेस्ट बहुत जरूरी है, बच्चे को कूल डाउन बहुत जरूरी है जब हम करवा रहे हैं। सो इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी एथलीट क्लासिफिकेशन, सो इट्स वेरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वी हैव टू नोट डाउन, वी हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। सो व्हाट हैपेंस इन क्लासिफिकेशन means the Indian Sports Federation of Cerebral Palsy follows the inclusive ability based classification system. What is happens based on the international standard and Paralympic and adapted to the functional ability of the athlete with the cerebral palsy and associate neurological condition. तो क्या करता है ये इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी जो है प्रतियोगिता को सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित क्षमता आधारित समावेशी वर्गीकरण प्रणाली को अपनाता है। सो व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन, टू इंश्योर फेयर एंड एडिक्वेबल कंपटीशन। और देखना है क्योंकि हमारा इंश्योर हो और जो है हमारा जो निष्पक्ष प्रतियोगिता सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को अवसर प्रदान करना है। Then the match athletes with the similar functional abilities, उसको मैच करना है, क्योंकि जो कंपटीशन होना चाहिए उससे मिलता जुलता एथलीट के बीच होना चाहिए। इनहांस एथलीट सेफ्टी, सेफ्टी जरूरी है, बच्चे को एपिलेप्सी आता है, कन्वल्सन आता है, ये मिर्गी होता है, तो उसको देखना है, कोई अदर उसके प्रॉब्लम्स है तो वी हैव टू फाइंड आउट, उसका सेफ्टी बहुत जरूरी है। इनकरेज मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, उसको मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन जो है। तुम्हारा पीपीटी इतना छोटा सा हो गया, इतना बड़ा तू आते गेट पर। फिर वो बीच में तुम निशा इसका ही बोल रही है, गुलेरिया हराम जादे पायल, पायल फिरदौस, अगर है ना पायल फिरदौस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। So understanding cerebral palsy profiles, CP1, CP2, CP3, I will tell you that is also comes 31, 32, 33. T means track, F means field. So if the running is there, that is a track, or field event like throwing, you have shot put, javelin, discus, soft balls, it comes under F category. So CP1 means severe spastic quadriplegia, high support. Quadriplegia means चारों उसके अंग affected होते हैं, both limb and lower limb and upper limbs. So all four limbs are affected, then it comes under CP1, that is called quadriplegia. Under CP2, what is a moderate quadriplegia or severe diplegia, यानी उसको ज्यादा दोनों पैर affected है और हाथ जो है थोड़ा कम affected है, so उसको CP2 कहते हैं। CP3 क्या होता है, मॉडरेट डायप्लीजिया और हेमिप्लीजिया। हेमिप्लीजिया क्या होता है, एक साइड अगर अफेक्टेड है तो इस कम्स अंदर मॉडरेट डायप्लीजिया और हेमिप्लीजिया। ये सब छोटा छोटा टर्म हो सकता है, आपको अभी पहली बार में नहीं, बार बार सुनेंगे तो आ जाएगा। CP4 क्या है, माइल्ड डायप्लीजिया और हेमिप्लीजिया, माइल्ड लेवल का। और CP5 में क्या है, अटैक्सिक, हमने पढ़ा था अभी, बैलेंसिंग इम्पायरमेंट, जो प्रॉब्लम्स है, कुछ खड़ा होता है, चलता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको बैलेंसिंग प्रॉब्लम है।
CP6 क्या है, हमने बताया था, जो है हमारा एथेटॉइड यानी डाइकनेट, जो है डिस्कनेटिक जो है सेरेब्रल पाल्सी, इनवॉलंटरी मूवमेंट है, इसको एथेटॉइड भी बोलते हैं, एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी। सो एथेटॉइड जो सेरेब्रल पाल्सी है, डिस्काइनेटिक जो है सेरेब्रल पाल्सी है, ये CP6 में आता है। CP7 क्या आता है, मिक्स टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, दोनों हमारा एथेटॉइड है एंड एटैक्सिक है, दोनों है, तो सेरेब्रल पाल्सी 7 में है। और CP8 में क्या है, सेरेब्रल पाल्सी विद इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पायरमेंट, उसको बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, इट कम्स अंडर CP8, यानी CP8 में माइल्ड लेवल का उसको सेरेब्रल पाल्सी रहता है और माइल्ड लेवल का इंटेलेक्चुअल बौद्धिक दिव्यांग है, तो CP8 ये इंडियन स्पोर्ट्स सेरेब्रल पाल्सी में हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है। And then level and play what we have to level. Already we have discussed level 1. Under level A, what independent and competitive they can perform. Level B, semi-assisted participation. Level C, fully assisted. यानी totally assisted athletes हमारा cerebral palsy comes under C level. अगर partial है, semi-assisted है, then it comes under level B. And totally independent, it comes level A. ये तो so warm up and mobility. So there is a level is a different and the classification is different. So under a different level again we have to took the different games, like under level 1 is independence. It start with CP8 down to up. So warm up and mobility exercise, what we can do, warm up and mobility exercise, a proper, there is a, what happened, what are you doing? Disha ji, what are you doing? Please delete Disha ji, this one. Okay. So what warm up mobility exercise, आप लोग देखते रहते हैं कि आप लोग सुनते कम है, मोबाइल को एकदम आदत जो हो गई है चलाते रहने के लिए, सुनते रहते और चलाते रहते, उसके कारण दिस द प्रॉब्लम्स कम्स. सो व्हाट दीपिका जी, ए प्रॉपर वार्म अप प्रिपेयर. गुलेरिया जी दीपिका सॉरी सर, ये गलती से हो गया, सॉरी सर, डिलीट कर दी. कैन यू डिलीट दिस वन? नो, नॉट दिस वन, नॉट फ्रॉम दिशा, but I have deleted my one. Okay, thank you. So what happens at the warm-up? Yeah, thank you very much. A proper warm-up prepare the body for what? Safe and effective sports participation. हम उसके वार्म अप करने से क्या, सुरक्षित और प्रभावी खेल के रूप में उसको तैयार कर सकते हैं. व्हाट, क्या उसके बेनिफिट्स क्या है? दैट्स इंक्रीजेज द ब्लड सर्कुलेशन, improves muscle flexibility, enhance joint mobility, reduce the injury risk, improves movements efficiently. तो हमको ध्यान रखना शरीर की कार्य क्षमता को बेहतर होना था. व्हाट वी हैव टू वार्म अप फॉर 8 to 10 minutes, वेरी नेसेसरी. तो सो व्हाट वी कैन डू, स्लो वॉकिंग, आप एवरीवन भी आप लोग जानते हैं. देन मार्चिंग इन प्लेस, घूमते रहना इधर उधर, हम लोग भी खाना पी के खा के इधर से उधर घूमते हैं. आर्म सर्कल कर सकते हैं, शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं, हिप रोटेशन कर सकते हैं, नी लिफ्टेड, एंकल मूवमेंट्स एंड जेंटल स्ट्रेचिंग ये कर सकते हैं. सो वार्म अप शुड ऑलवेज बी adapted according to the athlete's functional ability. So we have to see what are the functional abilities. So, and the balance the next is the balance training. कोई किसी को दिक्कत है तो you can ask. So बैलेंस ट्रेनिंग क्या हो सकता है, आप जानते हैं. बैलेंस ट्रेनिंग इम्प्रूव्स पोस्चर्स, स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस. आपने देखा है कि हमारा किस तरह CP एथलीट को किस तरह हमारा अगर उसको ट्रेनिंग देते हैं तो उससे क्या इंप्रूवमेंट होता है, पोस्चर, स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस. सो व्हाट वी कैन डू इन द ट्रेनिंग एक्टिविटीज, स्टैंडिंग एंड वन लेग विद सपोर्ट्स इफ रिक्वायर्ड. एक मतलब सपोर्ट हल्का देने से भी अगर एक पैर पर खड़ा हो सकता है, सो वी कैन स्टार्ट. हिल टू टो वॉकिंग, हम जानते हैं कभी हिल पर पैर के ऊपर उठा करके हिल ऐसे करके चल सकते हैं. बैलेंस बीम वॉकिंग कर सकते हैं, एक लाइन में खरीद दिए उस पर चलना है. स्टैंडिंग ऑन द फोम सरफेस, मुलायम सतह पर जो है चलने का कर सकते हैं. सिट
टू स्टैंड प्रैक्टिस, बैठना उठना, वेट शिफ्टिंग, वेट नीचे से अगर ऊपर उठना तो क्या होता है, वेट शिफ्टिंग होता है, लेट कर उठना तो ये सब क्या है, वेट शिफ्टिंग है। रीचिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, आगे पहुंचने का स्टेप ऑफ एक्सरसाइज। तो हम ये सब चीज हम ट्रेनिंग एक्टिविटीज में डाल सकते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या है, बेटर पोस्चर, देन दे इम्प्रूव द वॉकिंग, फॉल प्रिवेंशन एंड इंक्रीज कॉन्फिडेंस। सो बेटर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से होगा, जो कराने से इसका हो सकता है। सो नेक्स्ट हमारा स्लाइड्स है, यह है फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कार्यात्मक शक्ति प्रशिक्षण क्या है, जानने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, हम विल शो यू द वीडियो ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं, हम वीडियो दिखाएंगे जो पढ़ा रहे हैं, देयर इज अ वीडियो, विल शो यू इन द लास्ट। तो हमारा क्या है कि बीच बीच में आप इसको नोट भी कर लीजिए। तो ये हम लोग फिर टाइम हो रहा है, स्टिल हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं, हमारे अवतार सिंह साहब आज जुड़े हैं क्या? नहीं जी जुड़े। हाँ डॉक्टर शिवाजी, बहुत अच्छा चल रहा है, और स्पेशली जो कोचेस सीपी डील कर रहे हैं उनके लिए तो ये गोल्डन प्रेजेंटेशन है, बहुत बहुत अच्छा। हम लोग को भी कई जानकारियां मिली, कुछ क्वेश्चन है जो हम Okay, sir. आपसे Okay, sir. पूछेंगे बाद में, ये कर लीजिए। Sorry, okay. So still we have to continue. So what we can do, functional strengthening training. What we can do is जो हमारा जो है strength training helps athlete perform daily and sports activities more effectively. What we can do, training area, core muscles आप जानते हैं, legs, arms, shoulder stability, hip stability. What we can do in the exercise, chair, sit to stand. कुर्सी पे बैठ कर खड़ा होना है, देन वॉल पुशअप, वॉल पर करके आगे पीछे, ये सब आप जानते हैं, वॉल पुशअप करना। मिनी स्क्वाट्स अभी भी जानते हैं कि मिनी स्क्वाट क्या होता है, पैर पर स्क्वाट करके बैठना है। देन रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज है ना, ये भी करते हैं, स्टेप अप्स कर सकते हैं। मेडिसिन बॉल एक्टिविटीज आप मार्केट से ले सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। फंक्शनल रीचिंग, सो ये सारे के सारे you will find in the website and YouTube also, in the go through the YouTube channel of the Indian Sports Federation of Cerebral Palsy, you will find all these activities we are keep posting on that. So what is the training principle? The start easy, progress gradually, maintain correct technique and encourage regular practice. Regular एक दिन कराने से नहीं होगा, we have to do rest. So what another safety during the sports, what we can do, सेफ्टी शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमेशा देखना है कि ऐसे बच्चे का सेफ्टी बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, अभी जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप बच सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रेनिंग नहीं लिए रहते, किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा तो आप एक्ट जानते हैं, RPWD एक्ट है, कोई गार्जियन तुरंत पहुंच जाएगा कमिश्नर के पास थाना में कि भाई हमारा ये कर दिया। तो लेकिन आप एक बार एक ट्रेनिंग ले रहे हो तो यू विल बी इन द सेफ इन, बिकॉज यू हैव बीन गिवन द ट्रेनिंग। सो दैट इज द फर्स्ट, आपका ये सर्टिफिकेट, आपको कभी भी किसी तरह का इंजुरी, कोई दुर्घटना कुछ भी होगा तो ये सर्टिफिकेट आपको बचाने जा रहा है। ऑलरेडी यू हैव टुक द 1 month ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो और वो हमारे हाथ से लिए है। आई वाज द कमिश्नर आल्सो, आई वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ पैरालंपिक, वन ऑफ द ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी फॉर स्पेशल ओलंपिक एंड ब्रॉट स्पोर्ट्स ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी व्हीलचेयर रग्बी इन इंडिया। सो आप हम लोग के हाथ से आप सर्टिफिकेट ले रहे से आपको और प्राउड महसूस होना लगेगा आने वाले समय में। सो सेफ्टी ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स वेरी ऑलवेज व्हाट वी हैव टू चेक सेफ प्लेइंग एरिया। जब भी खिलाएं देख, ऊंचा खाबर बहुत तरह का एरिया रहता है जहां बच्चे को पैर डालने से बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना जरूरी है। हाइड्रेशन में बार बार बताता हूँ, पानी पीना। आप लोग कितना पानी पीते हैं एक दिन में? मैं टोटल 5 से 6 बोतल्स रखता हूँ, तो ऑलमोस्ट 5 लीटर से 5.5 लीटर पानी पीता हूँ। तो आप लोग आप चैट बॉक्स में लिखिए आप कितने पानी पीते हैं, मैसेज में डालिए, बोलिए मत कितने बोतल्स पानी पीते हैं। अवतार सर साहब आपसे भी है,
चैट बॉक्स में डालिएगा कितने पानी पीते हैं, ठीक है। वेदर कंडीशन जरूरी है। आज टुडे व्हाट हैज हैवी रेन, हम जब ले गए और पूरा वेदर कंडीशन सही नहीं है। मेडिकल इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। इमरजेंसी कांटेक्ट, उसके कभी कभी क्या होता है, आज हमारा इमरजेंसी, उसके माता का, फादर का, सिबलिंग्स का और लोगों का, उसके कांटेक्ट नंबर जो है जरूरी है। फर्स्ट एड अवेलेबिलिटी, जब भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं, पहला ज्यादा खर्च नहीं होता, 400-500 रुपया में एक फर्स्ट एड किट आता है, हमेशा रखना चाहिए। एंड कोच का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सुपरवाइज एथलीट, बराबर ध्यान दे बच्चे में किसी तरह का छोटा मोटा इग्नोरेंस से कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। देन प्रिवेंट द फैटिग, क्या है कि बार अधिक थकान, बहुत ज्यादा करेंगे तो थकान हो जाता है, तो फैटिग जो है उसको बचना चाहिए। प्रोवाइड रेस्ट ब्रेक्स, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट होनी चाहिए। मॉनिटर साइंस और पेन, अगर उसको पीछे से पेन हो रहा, नहीं बता पा रहा है, तो वी हैव टू सी ऑन द फेस। अल्टरनेटिव AAC जानते हैं, एगमेंटेशन कम्युनिकेशन, उनके चेहरे से पता कर लेते हैं। इंश्योर सेफ ट्रांसफर्स, है ना, उसका सुरक्षित हस्तांतरण सुनिश्चित करें। इनकरेज सेफ पार्टिसिपेशन, बहुत जरूरी है। तो सेफ्टी रूल्स क्या बोलता है? सेफ्टी बिफोर परफॉर्मेंस, हमेशा परफॉर्मेंस से पहले उसकी सेफ्टी देखिए, नहीं तो बहुत समस्या हो सकती है। हम क्योंकि जिस बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, हमारा सेफ्टी प्रायोरिटी है। बहुत सारे लॉ है, भारत के लॉ है, हमारे नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, RCI एक्ट है, RPWD एक्ट है, और लोगों का भी है, संपत्ति उनके साथ है। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, वेरी मच। सो एडेप्टिव इक्विपमेंट्स क्या हो सकता है? एडेप्टिव इक्विपमेंट्स हेल्प्स एथलीट टू पार्टिसिपेट सेफली एंड इंडिपेंडेंटली। क्या हो सकता है? वॉकर्स, क्रचेज, ऑर्थोसिस, एफोस पैर में लगाने वाला। कितने लोग देखा है एफोस को? AFOS, अगर आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म डालना आप, मैं छोड़ जाता हूँ। व्हील चेयर्स, स्टैंडिंग फ्रेम, बैलेंस सपोर्ट्स, मॉडिफाइड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, लाइट वेट बॉल्स, ये सब रहता है। ये मॉडिफाइड एडेप्टेड इक्विपमेंट्स वी कैन यूज। इसका बेनिफिट्स क्या है? बेटर मोबिलिटी, इंप्रूव द बैलेंस, इंक्रीज द इंडिपेंडेंस, greater participation, enhance the confidence. So we have to remember, equipment should support ability, not limit the participation. So इसको ऐसा इक्विपमेंट है उसको उसका परफॉर्मेंस ही गड़बड़ हो जाए। जो भी हम उसको डाल रहे हैं एडेप्टिव से, इसको परफॉर्मेंस को इजी होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। सो प्रैक्टिकल कोचिंग डेमोन्स्ट्रेशन क्या करना है आपको देख लीजिए। फ्रॉम द असेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, व्हाट ग्रुप एक्टिविटी वी कैन डू। Participants will work in the small group and demonstrate the following। क्या देखा? कोचिंग सीक्वेंस, ग्रीटिंग द एथलीट्स, पहले तो सबको नमस्ते, वेलकम, ये सब बताना जरूरी है। फंक्शनल ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है ना। उसके बाद बैलेंसिंग ट्रेनिंग देना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन, Yes, sir. खेल कौशल अभ्यास कराना है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, बीच बीच में वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, पुल डाउन ऑन फीडबैक, ये उसका जरूरी भी है, क्योंकि ईच ग्रुप conducts 10 minutes inclusive coaching session followed by the peer feedback. Yesterday we have shown the picture of the inclusive sports. One athlete just awarded in Central School in Kankarabagh with the all the 1000, 1200, so almost 12, 30, 1500 normal children के बीच एक बच्चे को support किया. So you imagine the inclusiveness. So sports discipline under the ISFCP क्या है? Then athletics, they're there. Football, CP football is there. Boccia is there. Swimming is there. Table tennis, badminton, cycling, archery, adapted physical activities, unified, and the community sports. Recently we are going to conduct the chess, National Chess Championship at the Bhagalpur during the 4th to 6th September. So what our goal is to sports build ability, not a disability. हमेशा खेल क्षमता विकसित करता है, क्षमता नहीं, हमको याद रखना है. So key learning outcome क्या है? So after completing this model, आपने सीखा explain cerebral palsy, in the आपको आंसर भी देना है. Take this screenshot or you answer it. Identify different CP profiles, understand functional movement, improve the balance and coordination, apply safe coaching and practice, conduct functional assessment, plan inclusive sports session, promote independence
and confidence ensure fair participation through the classic. So remember क्या करना है हमको? Good coaches adapt the activity to the athlete, not the athlete to the activity. So याद रखना है कि हमेशा जो है हमको बच्चे को अडेप्ट करना है, उसको हमेशा प्रशिक्षण देने की इस तरह करना है कि उसका जो है एक्टिविटीज को बढ़ावा दे. सो हम लास्ट में एवरी एथलीट मैटर्स, डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन एबिलिटी, है ना. सो वेरी ऑलरेडी पहले भी हमने बताया है. सो स्पोर्ट्स प्रोवाइड्स क्या करता है? कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, हेल्थ, सोशल इंक्लूजन, लीडरशिप, डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी. So already we have spoken the ISFCP vision, empowering every athlete with cerebral palsy through the sports. And then the greatest victory is not winning the medal, it is the create opportunity where every athlete can participate with dignity. सबसे बड़ी जीत पदक जीतना नहीं बल्कि प्रत्येक खिलाड़ी को सम्मान पूर्वक खेलने का अवसर प्रदान करना है. तो हमारा लास्ट में है Together we can build inclusive sporting nation. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. Dr. Shivaji, can I ask one simple question? Yes. देखिए कभी कभी अभी तो कुछ नॉलेज हो गया आप लोगों के जरिए, लेकिन पहले हम लोग जो सोचते थे कि सीपी और पोलियो इफेक्टेड जो लोग हैं उनमें उनमें क्या अंतर? हम लोग पहले सोचते थे कि जो लोग जो मदर्स जो बीसीजी के टीके वगैरह नहीं लेती हैं उससे आता है. बात समझ गए सर. अभी देखिए पोलियो क्या होता है, जन्म के पहले नहीं होता है, जन्म के बाद होता है. ठीक है पहला. और ये सेरेब्रल पॉल्सी क्या होता है? प्रीनेटल नेटल. तो पहला तो ये है कि जन्म के पहले तो पोलियो नहीं होगा, जन्म के बाद होगा, 1 साल 2 साल पहला तो ये जान जाइए. और सीपी जो होगा जैसे ही जन्म होगा 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद ही पता चल जाएगा कि वो सेरेब्रल पॉल्सी है, क्योंकि वो या तो पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया, प्रीमेच्योर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, या बर्थ के समय उसका हेड इंजरी हो गया, या उसके बाद हो गया. सो और एक बार जो हो गया वो स्टैग्नेशन हो गया, इसको फिर आगे नहीं बढ़ता, उतना ही रह जाता है क्योंकि ब्रेन. वो तो बताया आपने. ठीक. हाँ तो ये हो गया. पोलियो क्या है? पोलियो वायरस के कारण जो है उसको पैर को धीरे धीरे इफेक्ट करता है और मसल्स वेस्टिंग हो जाता है. उसका पोस्ट पोलियो उसको बोला जाता है. बाद में पीपी जब पढ़ते होंगे तो पोलियो जो है डिफरेंट, उसका मसल वेस्टिंग होता है. लेकिन हमारा सेरेब्रल पॉल्सी में क्या है? मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है. थॉटॉइड है, करापन हो जाता है. स्पास्टिसिटी जिसमें खराब हो गया. थॉटॉइड मतलब उसको जो है मसल्स में करने में तनाव होता है. अटैक्सिक हो गया मतलब उसको मूवमेंट में, निगलने में, बैलेंसिंग में, बोलने में, और जो है इसको प्रॉब्लम पोन्स मॉड्यूला को इफेक्ट करता है. तो हमारा मोटर कोटेक्स फाइन मोटर से पकड़ना है, कैंची पकड़ना है, बॉल पकड़ना है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ये सब एरिया में सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे को प्रॉब्लम होता है. पोलियो वाले को प्रॉब्लम नहीं होता है. और ये जान जाइए. उसको बाकी मोटर, बाकी सारे एक्टिविटीज में पोलियो वाले को प्रॉब्लम होगा. बजाबता उसको मसल वेस्टिंग है, चलने फिरने में दिक्कत हो, लेकिन बाकी काम करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा. लेकिन हमारे बच्चे को बहुत अच्छा. हाँ ये हो सकता है. तो सर एक क्वेश्चन था. यस. जो आपने बताया इम्प्रूव ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसमें एगिलिटी लीडर क्या होता है? एजिलिटी होगा. एगिलिटी लीडर एजिलिटी होगा. हाँ. अब क्या है कि अब एक चीज समझो, एजिलिटी क्या है? हमको खुद करके दिखा, हम बच्चे को डायरेक्शन दे रहे हैं और उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं. खाली डायरेक्शन से तो नहीं होगा, हमको खुद लीडर बनना होगा, हमको खुद दिखाना होगा, तब बच्चे हमारा जो है मॉडलिंग करके बच्चे करेंगे. ऐसा नहीं कि हम खाली कर रहे हैं. वी हैव टू शो जो कर रहे हैं पूरे पोस्चर के साथ, पूरे तन्मय के साथ. हम फेंक रहे हैं, थ्रोइंग इवेंट कर रहे हैं तो पूरे हमको दिखाना है. साइकिलिंग कर रहे हैं तो पूरा खुद भी हम बगल में साइकिल चलाएं, उनको बगल में करने दें. तो वी हैव टू बिकम द रोल मॉडल. ओके. पेडागोगी बोलते हैं उसको. यस यस सर. और मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, फिर डिस्कशन भी कर सकते हैं हम लोग. राहुल जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? अच्छा मैं एक शेयर करता हूँ तब. हाँ इसी के वेबसाइट से चाहता हूँ, सेरेब्रल पॉल्सी. आप लोग जो है इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी के यूट्यूब चैनल पर भी आप जाएंगे
तो बहुत सारी चीज जो है मिलता है। तो आज हम आज का वीडियो जो है हम लोग योर चैनल एंड वीडियो ऑटिज्म latest 1 minute latest video uploaded into डाले थे इसमें close course question। आज के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज चर्चा होगी एक ऐसे कमाल के इनिशिएटिव पर जो सिर्फ एक कागजी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। चलिए वीडियो में निकालता हूँ। राहुल जी कहीं हैं आज? राहुल जी आ गए, ठीक है। सर्टिफाइड इन मैं शेयर करता हूँ। दिखाई दे रही है? इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कोच प्रोग्राम के ट्रेन द ट्रेनर लेवल 1 सेशन में आपका स्वागत सबको है। सुनाई दे रहा है क्या? मैं हूं आपका होस्ट और आज हम इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन सुनाई दे रहा है। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊंचा कीजिए। डॉक्टर शिवाजी कुमार के विजन और ट्रेनिंग पर विस्तार से बात करेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य एकदम साफ है, खेलों के माध्यम से एक समावेशी भारत बनाना, यानी इंक्लूसिव इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सेरेब्रल पॉल्सी स्पोर्ट्स और समावेशी कोचिंग की बारीकियों को समझना शुरू करते हैं। ISFCP का विजन एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिका है, सेरेब्रल पाल्सी वाले हर व्यक्ति तक खेल पहुंचाना। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक बदलाव की शुरुआत है। एक कोच के रूप में यह हमारा सबसे बड़ा काम है कि हम अपने एथलीट्स को सशक्त बनाएं ताकि मैदान पर हर खिलाड़ी पूरे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ खेल सके। आज के हमारे इस सेक्शन का एजेंडा बिल्कुल सीधा है। हम सेरेब्रल पॉल्सी के बेसिक्स समझेंगे, मूवमेंट और बैलेंस पर बात करेंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम को जानेंगे और अंत में समावेशी कोचिंग के प्रैक्टिकल सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। भाग 1, सेरेब्रल पॉल्सी को समझना। आगे बढ़ने से पहले इस स्थिति की सही और बुनियादी समझ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सेरेब्रल पॉल्सी या सीपी आखिर है क्या। आसान शब्दों में कहें तो ये एक स्थायी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। ये मस्तिष्क के विकास के दौरान हुई किसी क्षति के कारण होती है जिसका सीधा असर शरीर की गति, पोस्चर और मांसपेशियों के तालमेल पर पड़ता है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये कोई छूत की बीमारी नहीं है और न ही ये समय के साथ बढ़ने वाली कोई प्रोग्रेसिव बीमारी है। हाँ, उम्र और विकास के साथ खिलाड़ियों की शारीरिक चुनौतियां थोड़ी बदल जरूर सकती हैं, लेकिन उनका खेलों से जुड़ना पूरी तरह संभव है। अब जरा इस डेटा को देखिए। खेलों में लगभग 75 से 80% मामले स्पैस्टिक सीपी के होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी मैदान पर कोचिंग दी जाएगी तो ज्यादातर इसी शारीरिक स्थिति वाले एथलीट्स सामने होंगे। इसलिए इसके बारे में गहरी जानकारी होना हमारे लिए बहुत अहम है। मुख्य रूप से सीपी के 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्पैस्टिक, जहां मांसपेशियों में काफी कड़ापन आ जाता है। दूसरा है डिस्काइनेटिक, जिसमें शरीर की गतियां अनियंत्रित होती हैं। तीसरा है अटैक्सिक, जो सीधे शरीर के संतुलन और तालमेल को प्रभावित करता है। और चौथा है मिक्स्ड, जहां इनमें से कई लक्षण एक साथ दिखते हैं। एक बेहतरीन कोच की खूबी क्या है? यही ना कि वो हर एथलीट के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को ढाल ले। उदाहरण के लिए स्पैस्टिक सीपी वाले खिलाड़ी के लिए स्ट्रेचिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जबकि अटैक्सिक सीपी वाले के लिए कोर स्ट्रेंथ और बैलेंस पर। भाग 2, मूवमेंट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। आइए देखते हैं कि एथलीट खेल के मैदान पर कैसे तालमेल बिठाते हैं। फंक्शनल मूवमेंट, इसका सीधा सा मतलब है रोजमर्रा के काम और खेल से जुड़ी गतिविधियों को सुरक्षित और सही तरीके से कर पाना, चाहे वो दौड़ना हो, जंप करना हो या फिर गेंद फेंकना। एक खिलाड़ी के लिए मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, मांसपेशियों की ताकत और अपने शरीर के प्रति जागरूकता होना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ खेल के लिए ही नहीं बल्कि उनकी आम जिंदगी को आजाद और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत काम आता है। एक सर्टिफाइड कोच के तौर पर यहाँ एक बड़ी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है।
ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि खिलाड़ी की मेडिकल रिपोर्ट या डायग्नोसिस क्या कहता है, बल्कि फोकस इस बात पर होना चाहिए कि उसकी कार्यात्मक क्षमता यानी फंक्शनल एबिलिटी क्या है। वो कितनी आसानी से और सुरक्षित तरीके से खेल की गतिविधियों को कर पा रहा है। हमारा सारा ध्यान बस इसी क्षमता को निखारने पर होना चाहिए। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग किसी भी खेल की जान होती है। इसमें स्टैटिक और डायनामिक बैलेंस से लेकर हाथ, आंख और पैर आंख का तालमेल शामिल है। एड़ी से पंजे तक चलने वाले व्यायाम हो या फिर एजिलिटी लैडर की ड्रिल्स, ये सभी अभ्यास खिलाड़ी की शारीरिक मुद्रा सुधारते हैं, उनकी स्पीड और रिएक्शन टाइम बढ़ाते हैं और सबसे अहम बात, उनके गिरने का डर कम करके उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देते हैं। भाग 3, एथलीट फंक्शनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। खेल में निष्पक्षता और बराबरी बनाए रखने के लिए ये सिस्टम समझना अनिवार्य है। ISFCP ने एथलीट्स को 8 अलग अलग CP प्रोफाइल्स में बांटा है, CP1 से लेकर CP8 तक। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि खिलाड़ियों को उनकी मेडिकल कंडीशन के लेवल की बजाय उनकी समान कार्यात्मक क्षमताओं के आधार पर एक साथ रखा जा सके। इससे खेल के मैदान पर हर किसी को बराबरी का मौका मिलता है। इसमें भागीदारी के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। लेवल A जो पूरी तरह से स्वतंत्र और कॉम्पिटिटिव एथलीट्स के लिए है, लेवल B जिसमें थोड़ी बहुत सहायता की जरूरत होती है, और लेवल C जो पूरी तरह से सहायता प्राप्त या व्हीलचेयर सपोर्ट वाले खिलाड़ियों के लिए है। एथलीट को सही कैटेगरी में रखने के लिए हमें उनकी ताकत, मसल कंट्रोल और सोचने समझने की क्षमता का सूक्ष्म आकलन करना होता है। यही सिस्टम सुनिश्चित करता है कि मुकाबला हमेशा निष्पक्ष हो। भाग 4, समावेशी खेल कोचिंग के सिद्धांत। चलिए जानते हैं कि मैदान पर एक सुरक्षित और प्रभावी ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। किसी भी ट्रेनिंग में एथलीट की सुरक्षा सबसे ऊपर आती है। समावेशी कोचिंग का मूल मंत्र ही यही है कि कमियों पर नहीं बल्कि क्षमताओं पर पूरा फोकस किया जाए। गतिविधियों को कैसे आसान बनाया जाए, जैसे कि हल्की गेंदों का इस्तेमाल करना या बैलेंस के लिए सही सपोर्ट देना। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि खिलाड़ी बिना किसी थकान या चोट के सुरक्षित रहें और पूरे आत्मसम्मान के साथ खेल का आनंद लें। मैदान पर एक सफल प्रैक्टिकल कोचिंग सेशन का क्रम कैसा होना चाहिए? इसकी शुरुआत हमेशा खिलाड़ी के गर्मजोशी से स्वागत और उनके कार्यात्मक ऑब्जर्वेशन से होनी चाहिए। उसके बाद सही वार्म अप, फिर बैलेंस ट्रेनिंग, स्किल की प्रैक्टिस और अंत में कूल डाउन के साथ पॉजिटिव फीडबैक। और हाँ, सबसे जरूरी बात, वार्म अप हमेशा हर खिलाड़ी की व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार ही कस्टमाइज किया जाना चाहिए। और अंत में भाग 5, खेलों के माध्यम से एथलीट्स को सशक्त बनाना। आइए देखते हैं कि इस पूरी ट्रेनिंग का असल प्रभाव मैदान पर कैसे पड़ता है। ISFCP कितने शानदार समावेशी खेलों को बढ़ावा देता है, जरा इस सूची पर नजर डालिए। एथलेटिक्स से लेकर CP फुटबॉल, बॉच्चा, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, यहाँ तक कि साइकिलिंग और तीरंदाजी भी। ये सभी खेल साबित करते हैं कि अगर सही मौका और मार्गदर्शन मिले तो एथलीट्स के पास आगे बढ़ने और अपना हुनर दिखाने के अनगिनत रास्ते मौजूद हैं। तो आज की इस पूरे सेशन का मुख्य निचोड़ क्या है? हमने CP प्रोफाइल्स को समझा, फंक्शनल मूवमेंट की अहमियत को जाना, असेसमेंट के तरीके सीखे और सुरक्षित कोचिंग की प्लानिंग की। यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। एक बेहतरीन कोच अपनी गतिविधि को एथलीट के हिसाब से बदलता है, ना कि एथलीट को अपनी गतिविधि के हिसाब से। इस शानदार सेशन का समापन डॉक्टर शिवाजी कुमार के एक बेहद ही प्रेरणादायक संदेश के साथ करते हैं। उनका कहना है, सबसे बड़ी जीत मेडल जीतना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर एथलीट पूरे सम्मान और गरिमा के साथ खेल सके। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खेलों के माध्यम से एक ऐसा समाज बनाएं जो पूरी तरह समावेशी हो, जहां हर किसी को समान अवसर मिले। हमेशा याद रखें, एवरी एबिलिटी मैटर्स, एवरी एथलीट काउंट्स, यानी हर क्षमता मायने रखती है, हर एथलीट महत्वपूर्ण है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने बहुत अच्छे से हमारी बातों को सुना, मेरे दिल से लगाव है। तो इसको समाप्त करेंगे। हमारे आज के चेयरपर्सन हमारे प्रेजेंटेशन के अवतार सिंह साहब, किनको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर, और आप था सेशन को अंत में। सर एक सवाल पूछ। या प्लीज। सर एक्चुअली जब हम लोग जितनी भी डिसेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं सर, उसमें ड्वार्फिज्म के बारे में क्यों बात नहीं करते सर हम लोग? डॉर्फिज्म है, डॉर्फिज्म भी है, जब पैरालंपिक में आता है। हमने बात किया था ना जी अभी सर। बात करें। हाँ, T40
और F40 comes under dwarfism. तो dwarfism के ओके फाइन। इतना देर इज इतना वास्ट है ऑलरेडी. वी हैव शोन यू द ना बुक हमारा फ्री में आप डाउनलोड कर लीजिए. उसको मार्केट में तो 1000 मिलेगा. चल ऐसा ओके आगे. प्लीज डाउन माई बुक स्पोर्ट डिसेबिलिटी इन स्पोर्ट्स. बहुत अच्छी बुक्स है. आउट ऑफ हमेशा अभी तक उसके जो है हमारे पास लगता है 32,000 कुछ जो है उसके सेल आउट हो चुके हैं. हमारे पास जो रिकॉर्ड है. आपको मालूम है कि मैंने ओके 42 बुक्स लिखे हैं. तो बुक्स को आप उसको लीजिए. उसमें सब कुछ दिया हुआ है. क्योंकि एक छोटा सा हर डिसेबिलिटी को बना 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है. देन अदर थिंग्स वी हैव टू इन द 1 month वी हैव टू सम अप. सो अब बेसिक फाउंडेशन है. सो विल आप चाहेंगे तो डॉर्फ के ऊपर एक अलग से ही हम सेशन ले सकते हैं ऑन डिमांड. अभी हमारा शूटिंग का करना है. हमको वाटर स्पोर्ट्स का करना है. हमारा वॉलीबॉल का करना है. सो मेनी थिंग्स देयर. यस अवतार सर. ये हाँ सर. तो धन्यवाद सर यदि डॉक्टर। हो सके तो एक ड्राफिज्म पे भी सर मतलब यदि मतलब आई डोंट नो करेंगे वैसे करेंगे करेंगे. ओके विल ठीक है थैंक यू सर. डॉर्फ जी का सर. एक दिन अलग से ले लेंगे. डॉर्फ के बारे में आपके जी डिमांड सर के थैंक आधार यू सर. पर है हम लोग चेंज करने वाले हैं. क्योंकि अगर लोगों को लग रहा है कुछ स्पेसिफिक है तो वी कैन हम बीच में चेंज कर सकते हैं. जी सर थैंक यू सर. जी. और एक मैं बता दूं देयर इज माइट बी प्रॉब्लम बिकॉज एवरीवेयर द इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है. सो सी टुमारो. पटना में तो भी ठीक है. तो अगर प्रॉब्लम होगा तो विल सी. अगर जिस दिन हमारा प्रॉब्लम होगा विल अपलोड द वीडियो एंड विल शेयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. या अवतार सर. हाँ डॉक्टर शिवाजी धन्यवाद। अब बहुत बहुत ही यूजफुल है इस तरह के कार्यक्रम। स्पेशली आज आपने जो इतनी सिंपल वे में सीपी के बारे में बताया, बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल कर आई जो हम लोगों को भी नहीं पता थी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑल कोचेस और जो नए ट्रेनर्स हैं वो इसका लाभ ले। मैंने आपकी बुक देखी है और जब हमको कुछ मुश्किल पड़ती है, समझना पड़ता है, तो हम जरूर आपकी बुक रेफर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, जानकारियाँ हैं। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही मैं डॉक्टर शिवाजी को कहूँगा कि इस ओके. वेबिनार की समाप्ति की ओर बढ़े। ऑलरेडी हमारा समय हो चुका है 10:25. अगर कोई क्वेश्चन है न्यू जो नए नए जुड़े हैं वी रिक्वेस्ट यू हम NSRS फॉर्म को भर लें और हमारे वेबसाइट को जरूर देखें और हमारे यूट्यूब को करें. और जिनको प्रॉब्लम हो रहा है अभी हमारा पास ऑल बहुत सारा समय है. इतने डिमांड्स आ रहे हैं टुडे हमारे केरला से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से. इस लोग का वीडियो जा रहा है तो बहुत डिमांड है सर. अब उसको तो हम दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. सो विल डू नेक्स्ट टाइम समथिंग. क्योंकि इतने डिमांड्स हो रहे हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के चारों तरफ. रोज फोन आ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत प्रोडक्टिव है. बहुत लोग चाह रहे हैं करना और ये प्रैक्टिकल बेस्ड है. हम जो फाउंडेशन लेवल पर चालू किया है और आगे हम लोग जो है फिजिकल लेवल पर भी हम लोग इसको करेंगे. और सभी लोग का जो है आईडी डाउनलोड हो गया है वेबसाइट पर. तो आप लोग देख सकते हैं. मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ आपको कि आपको आसानी होगी. वेट मिनट 1 मिनट. हाँ तो मैं अभी देख रहा हूँ कि है. तो सभी कोई अपना आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं. किसी का आईडी अगर मिस कर गया है तो आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो. मैं अभी देख रहा था वेबसाइट पर था. वेबसाइट यस इंडियन स्पोर्ट्स पॉलिसी. या देखिए आप लोग सभी के बहुत सुंदर आईडी है. हमारे कोच वाला में जा सकते हैं. और अवतार सर इसके बारे में क्या करना है. वी आल्सो अपलोडिंग द आईडी. और इसमें क्या है डिजिटल है एंड यू कैन स्कैन. क्योंकि बार कोड दिया हुआ है सब में. बहुत डिफिकल्ट से ये सब बनाया गया है. दूसरा कोई रिप्लिकेट नहीं कर सकता. ये सारे बहुत आईडी अच्छा लगता है, आसमान में उड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये देखिए एक एक करके ये जी सब बहुत जो बहुत है सुंदर। बहुत सारे आईडीज हैं. आप एक एक करके देखिए. इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और हमेशा आपके ये आईडी जो है इस पर रहेंगे. क्योंकि यू बिकेम द कम्युनिटी कोच का हमारा अभी कुछ सारा अभी ये सारे के सारे आप 53 आईडी जो है अभी तक लोड हो चुके हैं. तो आप देख सकते हैं. और सभी को धीरे धीरे बाकी लोग का भी आईडी आ जाएगा. तो जिनको आईडी नहीं बनाया धीरे धीरे हमारी टीम इस पर वर्किंग कर रही है, काम कर रही है, पूरा लगा हुआ है. तो सभी ये बहुत सुंदर आईडी बने. आप प्रिंट आउट करा कर
आप इसको ऐसे घर में भी लगा सकते हैं, आप आई कार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि इसमें बार कोड दिया हुआ है एंड ऑल्सो पब्लिश इन द वेबसाइट। ओके, तो मैं लास्ट में दिखाना सोचा। इसके साथ शुभ रात्रि, कल मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह का हम यूज कर Thank you, सकते sir. हैं। ओके, गुड नाइट। Good night. Good night. सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Good night.